चाहे आप टपकने वाले धनवान हो या फिर बिल्कुल कंगाल, अति आनंदित हो या बिल्कुल नाखुश, संतुष्ट हो या फिर बिल्कुल खाली, हम सभी लोग एक समान राह पर चल रहे हैं। एक समान इसलिए क्योंकि हम किसी चीज की या फिर कहूँ तो शायद किसी जन की तलाश में हैं। कोई ऐसा जन जो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सके, हमें रास्ता दिखा सके, जो हमें सार्थक बनाकर हमें कैसी भी अवस्था में प्रेम करे। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है? मैं शर्त लगाती हूँ, ऐसा व्यक्ति है। वह हमें चौराहों पर मिलता है। वह हमें चेरस और सकरे मार्ग के चौराहे पर मिलता है। सकरा मार्ग हमें आशीषित और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है, जबकि चेरस मार्ग हमें खालीपन की दुनिया और निरर्थकता की ओर। जब आप यीशु मसीह की स्वागत करती हुई बाहों में जाने के द्वारा सकरे मार्ग का चुनाव करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। वह चौराहा सीधा होकर राजमार्ग बन जाता है। इस सुंदर राजमार्ग तक जाने का मुख्य द्वार क्रूस है। क्रूस एक रूपांतरण का स्थान है, जिस पर भयानक दंड देने वाला स्रोत ही उद्धार का माध्यम बन गया, जिस पर एक निष्पाप मनुष्य लटका, जिसने संपूर्ण मानव जाति में पैदा हुई और होने वाले सभी स्त्री और पुरुषों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस यीशु पर विश्वास करने वाले हम जैसे लोगों के लिए एक सेतु है। यह हमें पुराने जीवन से दूर लेकिन नए जीवन की ओर खींचता है, जो उन सारी चीजों से भरा होता है जो उसके साथ संबंध में पाई जाती है। क्रूस शत्रु के झूठ, उसकी योजनाओं और चालों से हमारी सुरक्षा है, क्योंकि उसने क्रूस पर सारा काम खत्म कर दिया है और अब हम परमेश्वर के सामने धर्मी और बिना किसी लज्जा और दोष के खड़े होते हैं। क्रूस जीवन जीने की नया तरीक है। यह हमारी प्रतिदिन अपने आप के लिए मरने में सहायता करता है। इसका अर्थ है कि हमें बार बार अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी नई वरन यीशु की इच्छा को पूरा करना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन की विलासिता, हमारी जरूरतों और हमारे आनंद के क्षेत्र में। क्या आप अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने की हिम्मत करेंगे? वह इस मार्ग में हर कदम आपके साथ चलने की प्रतिज्ञा करता है। वह आपको प्रेम करता है। वह शक्तिहीन महसूस करने के समय में आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता है। Hi church, wishing you a happy resurrection day, and let our prayer today be that everything dead in us be resurrected in Jesus' name. So let's join together and worship God and believe that He is alive. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Oh yeah. Grave, where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Oh yeah. Oh grave, where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, risen,
is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting into the world we live, the Father's only Son. And you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Oh, hallelujah, for all you've done. And hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting into the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. You lived, and you died, you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Oh, hallelujah, for all you've done. And hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Father, we thank you, Lord, for all that you have done, Master. And we will lift your name on high forever and forever, Lord Jesus. You, Jesus. Oh, we love you, Lord, forever and ever, Lord. We glorify your name. Oh, Jesus, we come before you. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is risen high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified.
is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. And we sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Oh yeah, you have overcome. The ground began to shake. The ground began to shake. The stones rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Hallelujah. You have won the victory. Oh yeah. Hallelujah. You have won it all for me, and death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Let's sing this out. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Oh yes, Jesus. And He has won our freedom. Jesus has won it all. Oh, we sing to you, Jesus.
our risen King, Father. And we worship you today, O Lord Jesus. Thanking you, O Father, for dying on that cross, Lord Jesus, for us. That pure love, O Lord, that we just can't understand, Master. Unconditional, O Lord Jesus. A love that will never ever fail us, O Lord. We thank you so much, Lord, for giving your life, O Lord. We thank you, Father, for sending your Son, for giving such a big sacrifice. We thank you. We thank you, Lord. And even as we sing this, let's sing it with all our heart and say, our God is risen. He is alive. Our God is risen. He is alive. He's won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He's won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He's won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He's won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Oh, yeah. Good morning, church. नमस्कार खलीसिया। It's Sunday morning, ये आज रविवार की सुबह है, Easter Sunday. ईस्टर का रविवार। The world knows it as Easter, दुनिया भर में इसे ईस्टर के नाम से जाना जाता है, but we know it's the day of the Lord. परंतु हम जानते हैं ये परमेश्वर का दिन है। The day Jesus rose from the dead. वह दिन जब यीशु मृत्यु से फिर जी उठे हैं। It's called the Resurrection Sunday. और ये हम उसे पुनरुत्थान का रविवार भी कहते हैं। Oh, we've been talking about the Passover. हम जो है फसह के पर्व के बारे में बात कर रहे थे, And I want to take on from where we left. और जहाँ से हमने अंत किया था वहीं से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। On the very first Passover, which took place 3,000 years ago. और वह फसह का पर्व जो करीबन 3,000 साल पहले शुरू हुआ था, The Israelites were protected from the angel of death because of the blood that was applied on the doorpost of their homes. और जो इस्राएली लोग उस वक्त मिस्र देश में मौजूद थे, उन्हें उस मृत्यु के स्वर्गदूत से सुरक्षा मिली थी उस वक्त जब उन्होंने मेमने का लहू उनके दीवार फाट पर, उनके चौखट पर लगाया था। They came under the protection of Almighty God. उस वक्त वो परम प्रधान परमेश्वर के सुरक्षता में आए। Later that same night, उसी रात को they were called out उन्हें बुलाया गया था and they were freed from the land of Egypt, और मिस्र देश से छुटकारा मिला that they था might go and worship God, ताकि वो जाकर परमेश्वर की आराधना कर led सके। by His presence उनके उपस्थिति के द्वारा उनकी अगुवाई की गई to their promised land. उनके वादे किए हुए भूमि के तरफ। Hallelujah. हालेलुया। We believe that as His covenant people, हम जानते हैं कि एक वाचा के लोग होने के नाते we are in such a time all over again. हम एक ऐसे ही समय में फिर से वापस आए हैं। God is calling us to stay under the shadow of the Almighty. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि परम प्रधान के छाया के अंदर हम रहे। He is calling us to stay under the blood of the Lamb, the true Passover Lamb
that is Jesus. वो बुला रहे हैं हमें कि हम मेमने के लहू के नीचे या उनके छाया में जो मसीह यीशु है उनकी छाया में रहे। I want to say that again. मैं ये बात फिर से दोहराऊंगा। Jesus is the perfect Passover lamb. यीशु सबसे संपूर्ण फसह का पर्व का मेमना है, Who died for us. जो हमारे लिए मारे गए, Who rose again on the third day. तीसरे दिन फिर से जी उठे, And He's calling us out of our Egypt. और वो हमें बुला रहे हैं कि हम अपने मिस्र से वापस बाहर Out आए, of our Babylon. जहाँ हम अपने बैबिलोन से बाहर निकले, He's calling us out of the world systems. जो सारी दुनियादारी की तौर तरीके हैं उसमें से हमें वो बाहर बुला रहे हैं। And we want to say to you, और हम ये बात आपसे कहना it's चाहते हैं time for us to rise again कि ये अब समय आया है हमारे फिर से उभर कर उठने का and to shine in His presence. और उनकी उपस्थिति में फिर से चमकने का। Today on Easter Sunday, आज ईस्टर के रविवार the पर day Jesus rose from the dead, ऐसा दिन जब माना जाता है कि यीशु फिर से जी उठे हैं, we want to share 10 blessings that I found in the first Passover. और मैं आपके साथ में 10 ऐसी आशीषों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने उस पहले फसह के पर्व से सीखा है। 3,000 years ago, God delivered them. 3000 वर्ष पहले परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिलाया। 2,000 years ago, 2000 वर्ष पहले Jesus, the Son of God, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, became the perfect Passover. हमारे लिए वो सबसे संपूर्ण फसह के पर्व बने। The Passover lamb, I mean. यह हमारा कहने का मतलब है सबसे संपूर्ण फसह के पर्व का मेमना बने, Who willingly sacrificed His life for you and me. जिन्होंने जानबूझकर अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया, So that you and I, we can inherit the blessings that come from His death, burial and resurrection. ताकि आप और हम ऐसे आशीषों को पा सके जो उनके मृत्यु के द्वारा, उनके गाड़े जाने के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्राप्त है। The title of my message is The 10 Blessings from the Passover. और मेरे इस संदेश का शीर्षक है 10 आशीषें जो फसह के पर्व से हमें मिलती है। My text is Exodus chapter 12, the entire chapter. और हम जिस वचन से पढ़ रहे हैं वो है निर्गमन का 12 अध्याय और उसका संपूर्ण अध्याय हम पढ़ेंगे। So I want all of you sitting in your homes, open your Bibles to Exodus chapter 12. मैं चाहता हूँ कि आप सब जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप निर्गमन का 12 अध्याय अपने बाइबल्स में खोलें। Now I found 10 blessings over there. इसमें मैंने 10 ऐसी आशीषें देखी है। I'm sure as you read and meditate upon the chapter, you will find some more hidden blessings in Exodus 12. और मेरा मानना है कि मुझे तो केवल 10 ही मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आप उसे पढ़े, उस अध्याय पर मनन करें, आपको और भी आशीषें उसमें दिखाई दे। Just as we enjoyed the Good Friday time with the Lord, जैसे हमने जो गुड फ्राइडे का समय परमेश्वर में बिताया और उसमें बहुत आनंद we उठाया, remember the death of Jesus. हम यीशु के मृत्यु को स्मरण करते हैं। Many of us connected on Zoom and spent an hour worshiping Jesus for what He did on the cross. हम में से बहुत से लोग जूम द्वारा मिलकर परमेश्वर की हमने आराधना की और उनको धन्यवाद दिया उस कार्य के लिए जो उन्होंने क्रूस पर हमारे। I believe your Bibles are open to Exodus 12. मेरा मानना है कि आपने अपने बाइबल्स जो है निर्गमन के 12 अध्याय पर खोलकर तैयार कर लिया So है। are you ready to hear the 10 blessings? क्या आप तैयार हैं उन 10 आशीषों को सुनने के लिए? Tell your neighbor, अपने साथ बैठे किसी से कहिए, hey, are you ready? हे, क्या आप तैयार हैं? Here's blessing number 1. सबसे पहली आशीष, And it's a time of deliverance from the pandemic. और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, महामारी से छुटकारे का समय अब आया है। It's time of deliverance from this pandemic. इस महामारी से अब हमारे छुटकारे का समय आया है। Let me read verse 31. और 31वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। Then the Pharaoh called Moses
and Aaron by night, and said, Rise, go out from among my people, both you and the children of Israel. और 31वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, तब फारून ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों के समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। You see, the pandemic is not, we are not afraid of the pandemic. The pandemic is afraid of us. देखो, जो महामारी से हमें डर नहीं लगना चाहिए, परंतु महामारी को हमसे डरना चाहिए। We don't have to worry about coronavirus anymore. हमें कोरोना वायरस से आगे अब डरना नहीं है। God is setting us free. परमेश्वर हमें आजाद कर रहे हैं। I said it before. मैंने पहले भी कहा है, डरना मना है। डरना मना है। क्या कहा? डरना मना है। क्या कहा गया है कि डरना मना है। So the first blessing इसीलिए सबसे पहली that we आशीष find in the Passover, इस पर्व में जो हम देखते हैं, deliverance from our enemy. हमारे दुश्मनों से हमें छुटकारा। Blessing number 2, दूसरी आशीष, time to enter into the promised land. समय आया है कि हम वादे किए हुए देश में प्रवेश करें। Let's read verse 51. और इसमें हम अपना 91 अध्याय पढ़ेंगे। And it came to pass on that very same day that the Lord brought the children of Israel out of the land of Egypt according to their armies. Hallelujah. और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल बदल करके निकाल ले गए। The whole idea of God to deliver the people was to take them into the land of their promise. और परमेश्वर की जो योजना थी वो यही थी कि वो अपने लोगों को छुटकारा दिलाकर उस वादे किए हुए देश में ले जा सके। What is your promised land? आपका वादा किया हुआ देश कौन सा है? It need not be a geographical place. ये एक कोई भौगोलिक स्थान होना जरूरी नहीं, But it's time to enter into God's promises and see the fulfillment of God's promises in your life. अभी समय आया है कि हम परमेश्वर के वादों में कदम उठाए और उनके वादों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखें। It's time for prophetic fulfillment. समय आया है कि भविष्यवाणी की जो बातें हैं उसे हम पूरा होते हुए देखें। Whatever promises that God has spoken in your life, आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने वादा किया है, you can believe for the fulfillment of those promises in this time. और उन वादों को पूरा करने के लिए आप इस समय में परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। Some of you have been standing on God's promises for various miracles. कई लोग जो है परमेश्वर के वादों पर डट कर खड़े रहे हैं ताकि उनको उनका चमत्कार मिल सके। Now is your time for your miracle. अब समय आया है कि आपको आपका चमत्कार मिले। Tell someone sitting next to you, now is the time of my miracle. आपके पास किसी बैठे हुए व्यक्ति से कहिए, अब मुझे चमत्कार मिलने का समय आ गया है। Amen. Amen. Enough of being scared and hiding. It's time to rise up and shine. अब डरने का समय खत्म हो गया, अब हमें उठकर उभर कर चमकने का समय है। Say hallelujah. कहो हालेलुया। Third blessing. तीसरा आशीष। Are you ready for the third blessing? क्या आप तैयार हैं तीसरे आशीष को ढूंढने के लिए? Sudden blessings from God. परमेश्वर की ओर से अचानक आने वाले आशीष है। Yes, sudden blessings from God. हाँ, अचानक आने वाले आशीष है। Verse 33. हम इसको 33वें अध्याय में देखेंगे। A part of it says this. और उसका कुछ भाग ये कहता है, Send them out of the land in haste. झटपट उन्हें देश से निकालो। You
You know, our God is a God of the suddenlies. क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर एक ऐसे अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। Get ready for the sudden blessing that will come from God for you. तैयार हो जाइए उन अचानक आने वाले आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपको देने वाले हैं। You know, when God gave Moses instructions on how to do the Passover, क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि फसह का पर्व किस तरह से मनाया how जाना you're चाहिए, supposed to eat the lamb, कैसे आपको उस मेमने को खाना है, He said, dress up. उन्होंने कहा तैयार हो। Now this is night time. अब ये रात का समय है But God says, put on your shoes, put on your belt, take your staff in your hand, get ready. और परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि आप जो है तैयार हो जाइए, वस्त्र पहनिए, अपने जूतों को पहनिए, अपने कमर को कस लीजिए और अपने हाथ में अपना डंडा लेकर बैठे। You see, God knows our future. आपको पता है परमेश्वर को हमारा आने वाला कल पता है और आने वाले दिन अच्छे हैं. आने वाले दिन अच्छे हैं। और in other words, अच्छे दिन आ गए. और इसका ये भी मतलब हुआ कि जो अच्छे दिन हैं अब हमारे हैं। So be ready to move. इसीलिए तैयार रहिए वहाँ से निकलने के लिए। Some of you be ready to move into a new business. कुछ लोगों को तैयार होना है अपने नए व्यवसाय में कदम उठाने के लिए। Some of you get ready for new jobs, for new assignments, new projects. और कुछ लोगों को तैयार होना है कि वो एक नए व्यवसाय में जाए, एक नए कार्य में जाए, या उनके जो दफ्तरों में उनको नया कार्य हाथ में दिया जाए। So in other words, ऐसा कहना क्या the मतलब sudden है blessings of God can overtake your life. कि परमेश्वर के अचानक आने वाले आशीषें आपके आगे आ गए हैं। Be ready to move into anything that God is leading you into. और जो कुछ भी परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं उस जगह में जाने के लिए, उसके लिए आप तैयार हो जाए। Move into the next level of favor in your life. आपके पास आने वाले हर एक अनुग्रह को, हर एक तरफदारी को आप परमेश्वर की ओर से तैयार करें। Get ready to move into promotions. आपको जो प्रमोशन मिलने वाले हैं, God is propelling you by the power of the resurrection spirit. और परमेश्वर आपको जो है उस पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा आपको प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। Now I'm bringing blessing number 4 to you. अब हम जो है चौथी आशीष को देखेंगे। The fourth blessing is चौथी आशीष ये है safety of abiding in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रहने का समय। You know, we are safe. आप जानते हैं हम सुरक्षित हैं। You may not know, but I believe you are safe. आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप सुरक्षित हैं। You are safe in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित हैं। You are protected by the blood and the power of His name. आपको परमेश्वर के लहू के द्वारा और उनके नाम के सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। Psalm 91 will be a reality in your life. भजन संहिता 91 जो है आपके जीवन में सही खरा उतरेगा। Now I want to bring blessing number 5. अब मैं आपको पांचवी आशीष बताऊंगा। Greater freedom to serve God and worship God. और आपको ज्यादा आजादी मिल रही है परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। Let's go back to verse 31. और हम फिर एक बार 31वें अध्याय को देखेंगे। The Bible says, वचन में ये लिखा है, Go and serve the Lord as you have said. और जैसे तुमने कहा है तुम्हारे कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। Greater freedom is coming to all of us. हम में से हर एक को ज्यादा आजादी मिलने वाली है। How many have desired, God, I want to worship you, I want to serve you. कितने लोगों ने ये इच्छा रखी है कि परमेश्वर मैं आपकी और सेवा करना चाहता हूँ, आपकी और आराधना करना चाहता हूँ। Many of us have become slaves to our jobs and our offices and our, the things that we do in our day-to-day life. कई बार जो है हम में से बहुत से लोग जो है हमारे जो काम है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें एक तरह से हम गुलाम बन गए थे।
God has shown us that He is God. परमेश्वर ने हमें ये तो दिखा दिया है कि वही परमेश्वर है। If He has to get your attention, He is willing to shut down the whole world if it takes to do that. और अगर वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो अगर इसलिए वो सारी दुनिया को उन्हें थामना पड़े, तो ऐसा उन्होंने किया है। He shut down the whole world. उन्होंने सारी दुनिया को बंद कर दिया। I read a poster somewhere. It's, there's a map of the whole globe and it says, shut down for renovation. और मैंने जो है एक तस्वीर ऐसी देखी थी जिसपे पूरी जो पृथ्वी की तस्वीर वहां पे लगा हुआ था, और उसके नीचे जो है एक वाक्य लिखा गया था कि इस पृथ्वी को बंद कर दिया गया है ताकि इससे फिर से नया बनाया जा सके। Now we have all the time in the world. अब हमारे पास दुनिया भर का समय है। So once again I am challenging you, join us for prayer, join us for worship. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हम प्रार्थना का समय बिता रहे हैं, आराधना का समय बिता रहे हैं, उसमें कृपया करके हमारे साथ जुड़ जाइए। Blessing number 6. और छठवीं आशीष। This is so good. ये इतना अच्छा है। Read verse 32. I love it. और 32वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, मुझे वो बहुत पसंद पूछने वाले। Each one of you will be a minister of the gospel. आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार का सेवक है। So here's what we say. और इसीलिए ऐसा हम आपसे कहते हैं, Rise up. उठकर खड़े हो जाइए। Shake yourself. अपने आप को हिला And लीजिए say, God, use me. और कहो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। Amen. Amen. Can you say that? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? Say it after me. तो मेरे पीछे पीछे कहिए, God, use me. प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए। Blessing number 7. और 7वीं आशीर्वाद। Oh, this one too. I love this one. और इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। Verse 33. 33वें आयत में हम पढ़ेंगे, This is what the Egyptians are saying. ऐसे मिस्र लोग ही कह रहे हैं, Send them out of the land in haste, for they said, we shall be dead. मिस्र जो कहते हैं हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। The Egyptians got scared of God's people. और मिस्री लोग जो है परमेश्वर के लोगों से डर गए थे। They called Moses in the middle of the night. उन्होंने मूसा को रातों रात बुलाया। He says, Mama, please go. उन्होंने कहा, भैया इनको लेके जाइए, Take all your people and go. अपने लोगों को लेकर जाइए, Bless us and go. हमें आशीर्वाद देकर जाइए, Go and worship God. और जाइए और अपने परमेश्वर की आराधना कीजिए। We've been saying this. हम तो ऐसा ही कह रहे हैं डरना मना है. कि डरना मना है। Now it is written in the Bible also. अभी बाइबल में भी लिखा हुआ है And they are scared of us. कि वो लोग हमसे डरे हैं। So long we were scared, अब तक तो हम डर रहे थे, but now time for them to be scared of us. परंतु Hallelujah. अब समय आ गया है कि वो लोग हमसे डरे। हालेलुया। डरना मना है, लेकिन आनंद मनाना है. डरना तो मना है ही, लेकिन हमें आनंद मनाना है। Blessing number 8. 8वीं आशीष, Overnight financial prosperity. रातों रात आर्थिक उन्नति। Now we like that, don't we? हमें ये तो पसंद है। Overnight financial prosperity. रातों रात आर्थिक उन्नति। Verse 35. इसको हम 35वें आयत में देखेंगे। This is what the Bible says. और ये वचन कहता है, God's people, परमेश्वर के जो लोग हैं, they took gold, उन्होंने सोना लिया, they took silver, चांदी लिया, then they took clothing from the Egyptians, मिस्र लोगों के वस्त्र भी लिए, and they left Egypt. और मिस्र को उस वक्त छोड़ा। So at this time and season, we don't lose, but we gain. इसीलिए इस समय में और ऐसे हालातों में हम कुछ खोने वाले नहीं हैं, हम कुछ पाने वाले हैं। Change your mind. अपने मन की सोचने की प्रथा को बदले। God will bless us. परमेश्वर हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। Don't keep your fists tight. अपने मुट्ठियों को
बंद करके ना रखे, Keep it open. उसे खुला रखे। If your hands are open, God will fill it. अगर आपके हाथ खुले हैं तो परमेश्वर उसे भरेंगे। Learn to give. और देना सीखिए, Learn to sow. और बोना सीखिए, Be generous. और आप उदार बन जाइए, Because nothing is hidden from the eyes of God. क्योंकि परमेश्वर के नजर से कुछ भी छुपा नहीं And है। you can never outgive God. क्योंकि आप जितना भी देंगे परमेश्वर से ज्यादा कभी नहीं दे पाएंगे। Keep your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर टिका कर रखिए। Now, blessing number 9. और 9वीं आशीर्वाद, Favor from your neighbors. आपके पड़ोसियों से आपको जो है अनुग्रह मिलेगा, आपको तरफदारी मिलेगी। Not only are they scared of us, अभी वो केवल हमसे डरे हुए नहीं है, but we also enjoy their favor. परंतु वो हमारी तरफदारी भी करेंगे, हमारा पक्ष भी You लेंगे। know, I've always said this: 1,000 days of labor is, and 1 day of favor. 1 day of favor is better. और मैंने हमेशा ये कहा है कि 1000 दिन हम जो है काम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन जब हमारे तरफदारी होती है, हमें अनुग्रह मिलता है, तो वो ज्यादा बेहतर है। I better put it like this: 1 day of favor is better than 1,000 days of labor. एक दिन का पक्ष लेना या एक दिन का अनुग्रह हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ना कि 1000 दिनों का कार्य। I love favor. मुझे तरफदारी पसंद है, You love favor. आपको भी पसंद है। And now God is showing us favor. अब परमेश्वर हमारी तरफदारी कर रहे हैं, हमारा पक्ष ले रहे हैं। Verse 35. और 35वीं आयत में हम ये देखेंगे, Actually, verse 36. इसको हम 36वीं आयत में देखेंगे। This is what the Bible says. और ऐसा वचन में लिखा गया है, And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested. And guess what? Thus they plundered in the Egyptians. और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। Blessing number 10. 10वीं आशीष, Time of freedom from your enemies. अपने दुश्मनों से आजादी का समय। Time of freedom from your enemies. आपके दुश्मनों से आजादी का समय। Verse 41. और हम एक 40वें वाक्य में पढ़ेंगे, All the armies of the Lord, all the people of God, they went out from the land of Egypt. और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। You know, the Egyptians were enemies of God's people. क्या आप जानते हैं कि जो मिस्र लोग थे वो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन थे? God's people were slaves. उस वक्त जो परमेश्वर के लोग थे वो गुलाम थे, But after the Passover, परंतु फसह के पर्व के बाद the people of God got freedom from their enemies. तो उस वक्त परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से आजादी मिली। Who is your enemy? आपका दुश्मन कौन है? A virus? कोई वायरस Situation? या कोई परिस्थिति? I don't know who is your enemy. You need to identify your enemy. मैं नहीं जानता आपका दुश्मन कौन है, आपको आपके दुश्मन को पहचानना But it's होगा। time to speak to your enemy. परंतु अब वक्त आ गया है कि आप अपने दुश्मन से संबोधित करें और उनसे बातें करें। He is setting you free from the enemy. परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों से छुटकारा दे रहा है। Time to move into a promised land. समय आ गया है कि उस वादे किए हुए देश में हम प्रवेश करें। Look at your enemy in the face and say bye-bye. आप अपने दुश्मन को नजर से नजर मिलाकर देखकर उनसे कहिए अलविदा। So these are the 10 blessings. Very quickly we brought it before you. ये ऐसी 10 आशीषें हैं जो हम बहुत जल्द आपके पास लेकर आए हैं। You know, we are God's people. आप जानते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, We are His children. हम उनके बच्चे हैं। You know, I want you to go back to Exodus 12 and read that whole chapter where God instructed
Moses how to conduct the Passover lamb and how to eat the meal, and you will find God speaking to you. और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी आप निर्गमन के 12वें अध्याय को फिर से घर में बैठकर अच्छे से पढ़े और उसमें से देखे कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि उस फसह का जो पर्व है उसे किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से उस मेमने को खाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें ताकि उसमें से आप बहुत कुछ सीख सके। God will speak to you. परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातें करेंगे। You will learn how to position yourself for God to bless you. परमेश्वर आप सीख पाएंगे कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आपको किस स्थान पर आकर टिक जाना है। Take a position of humility before God. परमेश्वर के आगे जो है आप एक ऐसा स्थान ग्रहण करें जो नम्रता का हो। You know, have the reverential fear of God in your lives. आपको परमेश्वर का एक श्रद्धा में डर होना जरूरी है। And He will not only protect you but also deliver you. वो केवल आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, वो आपको छुटकारा भी देंगे। And He will bless you mightily. और आपको बहुतायता से आशीष देंगे। You know, we may be in a lockdown. हम जो है एक लॉकडाउन में है, But Jesus is not locked down. परंतु परमेश्वर तो यीशु तो लॉकडाउन में नहीं है। He has risen. वो तो जी उठे हैं। The tomb cannot lock Him down. He is risen. उनको जो कब्र है उन्हें लॉकडाउन में नहीं रख पाए हैं, अब वो जी उठे हैं। The grave is empty. He is risen. कब्र तो खाली हो गया है, उनका पुनरुत्थान हो चुका है। He is risen. उनका पुनरुत्थान हो चुका है। He is risen. वो जी उठ गए हैं। I said He is risen. मैंने कहा वो जी उठ गए हैं। Say after me, He is risen. मेरे साथ मिलकर कहिए कि वो जी उठ गए हैं। Happy Resurrection Day. आपको पुनरुत्थान की हार्दिक शुभकामनाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Even as we close our eyes, जैसे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु that you became the Passover lamb for us. कि आप हमारे लिए उस फसह के पर्व के मेमने बने। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु that you came into this world. कि आप इस दुनिया में आए, You died for us. हमारे लिए मारे गए, You were buried. आपको गाड़ा गया, You rose again. आप फिर जी उठे And today we celebrate Easter, और आज हम ईस्टर मनाते हैं, your resurrection day. आपके पुनरुत्थान का दिन। You ascended into heaven. आप स्वर्ग में उठा लिए गए And we have this hope, Jesus, you're coming back very soon. और हम ये आशा रखते हैं यीशु कि आप फिर जल्दी वापस आने वाले हो। We pray that you release the blessing of celebrating the Passover. हम आपसे मांगते हैं कि फसह का पर्व का जो उत्सव मनाया जा रहा है उसकी आशीषों को आप अपने लोगों पर उड़ालें। The death, burial and resurrection into everyone's life. कि वह आशीषें उंडेले जो आपके मृत्यु, आपके गाड़े जाने के और आपके पुनरुत्थान की वजह से हमें मिलते हैं। Especially to all those who's watching this broadcast right now. खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And everybody said amen. और सब साथ में मिलकर कहे आमीन। You know, even in the midst of a pandemic, we can celebrate the resurrection of Jesus. क्या आप जानते हैं कि इस महामारी के बीच में भी हम यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना सकते हैं। You know, even in your home, आपके घर में भी do something special to celebrate today, to celebrate the resurrection day today. तो कुछ ना कुछ ऐसा खास करें जो इस उत्सव के साथ आप मना सकते With हैं। whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है, you know, celebrate Jesus today. आज यीशु का उत्सव मनाएं। Sing Jesus, you rose from the dead. ये कहते हुए कि यीशु आप जी उठे हैं। You know, as a prophetic act of faith, just celebrate and say, God, you rose from the dead. और I'm आप- celebrating Jesus. आपके विश्वास का एक उदाहरण लेकर, एक चिन्ह बनाकर आप जो है इस उत्सव को मनाएं। You know, on behalf of the entire leadership, you know, Sherry and I, we wish you a very happy
Resurrection Day. और हमारे पूरे अगवा मंडली की तरफ से शेरी और मैं आपको पुनरुत्थान के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। We love you. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। You know that. We love you. आप जानते हैं हम आपको प्यार करते हैं। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। आज खुशी मनाना है लेकिन डरना मना है। आज खुशी मनाना है लेकिन डरना मना मना है।